Hi students. So till now we have discussed about the reproductive system, the male reproductive system in case of cockroaches. Now we will move on and we will discuss the female reproductive system. And before we move on, I will just need to discuss the male reproductive system in the diagram itself with the diagram, the the better diagram what we can see on the screen right now. So if you see that we have discussed that there are testes are there in case of these male product in the male reproductive system. The main organs or the primary organs what we have for the part these are the testes. Then after the testes, what we see that there are some these structures which is connecting or which is coming out of the testes. They are coming first of all they are going towards the abdominal region, and then they actually come and form and join in a common structure, and from where the common ducts are also arising. Okay, so those are called vast difference, जो कि आप देख सकते हो यहाँ से आ रहा है टेस्टिस से आ रहा है, उसको बोलते हैं vast difference. ठीक है. Then after that there is a common duct, but we call it as a ejaculatory duct, which is coming and coming out at the end part of the abdomen. Okay. So then we have seen the different glands at the junction where these vast difference and the ducts, common ducts are actually originating there. So they are made up of three different types of tubule-like structures. The small one, the small tubule, which is present in the inner side. Then you have the longer tubule at the side, and then there are the special type of gland what we can see, which is because we're seeing it a 2D structure like in a top view, so we can see it in the behind. So this is your phallic gland. This is the spelling of the phallic gland, Phallic, phallic gland. Now, so these are the basic structure we need to understand about the male reproductive system. So other than that, you can see that this right telomere is here. So the telomere, it actually this is the part what we can say this, or we can say the male गोनो फेलोमियर को हम क्या कह सकते हैं, मेल गोनोफाइसिस भी कह सकते हैं और एक्सटर्नल जेनेटिलिया भी बोल सकते हैं इसको. तो जो राइट फेलोमियर है ये क्या है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया है किसी केस में, इन केस ऑफ द मेल. ठीक है. देन वी कैन सी देयर इज अ मेल जेनाइटल पोर इज देयर, देन वेंट्रल फेलोमार इज देयर. ठीक है. तो फेलोमार का दो पार्ट्स है, जैसे राइट वाला पार्ट है देन वेंट्रल वाला पार्ट है, तो हमने अलग अलग नाम दिया है इसको. ठीक है. Now next we can see that opening of the phallic glands. Phallic gland के जो openings है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे. Then a pseudo penis is there. They have a pseudo penis. Pseudo मतलब क्या? It look like penis but actually it is not penis. Then tiltator. They have the tiltator. Then anal system. हमने पहले भी discuss किया था इसके बारे में. Sorry, anal style. Then anal circus is also there. That also we have discussed, right? And this is the left फेलोमियर. ठीक है. राइट फेलोमियर है, वैसे लेफ्ट फेलोमियर होता है के पास होता है, और वेंट्रल फेलोमियर भी होता है, मतलब डिफरेंट पार्ट्स. ओके. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, जस्ट एन ओवरव्यू बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर फीमेल reproductive system. And before that we have just seen and we just have a quick revision. हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल में, तो इसीलिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लिए. वी हैव जस्ट डन अ वेरी क्विक रिवीजन ऑन दैट. नाउ फ्रॉम द मेल व्हाट हैपेंस, द स्पर्म्स आर एक्चुअली कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ क्लस्टर्स. ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. जो स्पर्म होता है ना, वो मेल से क्या जो जो रिप्रोडक्टिव मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है सिस्टम, उसमें से जो स्पर्म्स है ना, दे आर एक्चुअली collected in the form of clusters surrounded by two layers. ठीक है. And this structures is also having an opening from which the sperm can comes out easily. ठीक है.
तो मतलब what I'm talking here you need to understand, so I will just try to draw here to make you understand. So मान लो कि अगर स्पर्म है तो क्या होगा, बेसिकली स्पर्म इज एक्चुअली कवर्ड विथ टू लेयर, मान लो ऐसा दो लेयर है, ठीक है. सो लेट मी जस्ट ड्रॉ इट. सो मान लो कि there are two layers, the blue one is made up of one layer, then this red one, there are two layers. Now inside this layer, inside these two layers, the sperms are present. Okay, inside the two layer, the sperms are present. Okay, तो they are present in a cluster. ठीक है, तो मान लो कि दो लेयर्स हैं और बेसिकली जो स्पर्म्स है जो मेल सीक्रेट करता है तो वो एक क्लस्टर फॉर्म में रहता है एंड इट इज सराउंडेड बाय टू लेयर्स. ये भी होता है, मतलब जो स्पर्म्स होता है वो एक क्लस्टर फॉर्म में रहेगा एंड इट इज आल्सो प्रोटेक्टेड एंड सराउंडेड बाय टू लेयर्स. ठीक है, सो ब्लू वन इज मेंशनिंग वन लेयर, रेड वन इज मेंशनिंग अदर लेयर. और ये जो स्ट्रक्चर होगा इसमें एक ओपनिंग भी होगा. ठीक है, अभी ओपनिंग क्यों रहता है, किस लिए रहता है, हम आगे देखेंगे, आपको और समझ में आएगा. एंड इट इज हैविंग द ओपनिंग. ओके, अब बेसिकली इसमें से होता क्या है, ये स्पर्म जो है ये बाहर निकल जाता है यहाँ से. ठीक है, स्पर्म क्या करता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है. ठीक है, स्पर्म विल कम आउट. तो जो बेसिकली हमने क्या देखा कॉकरोचेस के केस में, जो स्पर्म है दे आर प्रेजेंट, दे आर एक्चुअली स्पर्म्स आर कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ cluster and they are actually surrounded by two layers, and these structures are also having an opening. Okay, and which help the sperm to come out easily. Now as soon as this structure is deposited in the female secretion of the phallic gland comes out and which hardens this structure. So as soon as the structure is deposited in the female body, then the phallic glands comes out and which hardens the structure. ये structure को hard कर देता है. ठीक है, तो अभी वो हम आगे देखेंगे वो क्यों होता है ऐसा और कैसे, इसका रीजन क्या है हम डिस्कस करेंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी आके डिस्कस करेंगे. So let's move on and start the next part of the reproductive system, or the next type of reproductive system in cockroaches, that is your female. As we know that sexes are separate, male and female are separate, so they both have the separate different types of reproductive system. Now first is the female reproductive system. See, the female reproductive system is made up of ovaries. जैसे आपने देखा था मेन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो प्राइमरी जो हमने उसके जो स्ट्रक्चर्स देखे थे वो जैसे टेस्टिस थे इन केस ऑफ मेल, वैसी तरह से इन केस ऑफ फीमेल वो क्या है, दैट इज योर ओवरीज. ठीक है, अब जो ओवरीज होता है ना, ओवरीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ 8 ओवेरियन टिब्यूल्स. ओवरी जो है बेसिकली 8 जो ओवेरियन टिब्यूल है उससे बनता है. ठीक है, और इसका जो आप देखोगे तो इसका जो स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे ईच ओवेरियन टिब्यूल का, तो इसका एक साइड जो होता है विच इज हैविंग अ टैपरिंग एंड. ठीक है, which one side is having a tapering end and narrow in nature, और अदर साइड इज लिटिल बिट ब्रॉड इन नेचर. ठीक है, जो कि बेस वाला पार्ट होता है, जो टिप वाला पार्ट होता है वो टैपर्ड होता है, नैरो होता है, और जो बेस वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है. ठीक है, जो इस तरह के जो टिब्यूल्स है, वैसे 8 टिब्यूल्स जो है मिलके एक ओवरीज बनाता है बेसिकली. ठीक है, अब ये जो नैरो पार्ट अगर हम देखो, हम अगर इस ओवरीज की जो सारे टिब्यूल्स इसको हम ध्यान से अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो एग्स है ना, एग्स के जो डिफरेंट स्टेजेस है, जैसे कोई एग है जो मैच्योर हो रहा है इन अ मैच्योरिंग स्टेज, सो दोस एग्स वी विल फाइंड एट द टिप ऑफ द टिब्यूल, एंड those who actually get matured eggs will find the base of the tibule. So that is a basic difference. ठीक है, now next अब क्या है कि all this tubule they are having an opening in a
common structure, through a common structure or a common duct. Both these ovaries are opening through a common duct, that is called oviduct. And the ovary are present two in number, that is right side one ovary, that is called right ovary, left side one ovary, that is called left ovary. Okay. Now, what happens? See, the ducts which are coming out from these ovaries are having a common connection. दोनों में क्या होता है? Common connection होता है. They are common duct, and that is called oviduct. Right. Now, this two duct joins to form a wider duct. अभी जो मतलब दोनों डक्ट हैं आपके अलग अलग ओवरी से आते हैं, दे विल एक्चुअली कम एंड जॉइन टुगेदर. देखो टिब्यूल जो है वो हर एक टिब्यूल का जो स्ट्रक्चर है एट द ब्रॉडर पार्ट, वो क्या होगा? दे विल ऑल कम, दे विल जॉइन एंड दे विल फॉर्म अ डक्ट दैट इज कॉल्ड ओविडक्ट, एंड ओविडक्ट ऑफ ईच ओवरी both are joined together, both the oviduct join together and they will form means what normally we can call the ducts coming from both the sides or both the ovaries are joined together and form a common duct that is called oviduct. ठीक है. And now this oviduct, they will join together and form a broader duct. ठीक है. तो डायग्राम हम जब देखेंगे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको. So let us just go to the diagram first. So to understand what we're discussing. तो बेसिकली क्या होता है? ये ओवरीज है, ये राइट साइड है, राइट साइड है, लेफ्ट साइड है. ठीक है. तो ये जो ओवरीज है, ये जो ओवरीज है, these are actually basically made up of 8 tubules, and you can count here 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7. So you need to draw one more. I have missed it. So there are 8 tubules are there. उसका अगर ऊपर की तरफ देखोगे टिप पार्ट वो बहुत नैरो है, नीचे की तरफ देखोगे बेस पार्ट it is little bit wider. So all these coming together and forming a common duct. So that's oviduct, and now these two oviducts they will form together and join together and form a wider duct, and that wider duct is called vagina. क्या कहते हैं उसे? vagina कहते हैं और vagina कहते हैं. ठीक है. Now the next we need to understand and we need to discuss, that is your, see the vagina opens into an area. इसके बाद आप देखो vagina जो है वो it is having an opening, and that area where it opens, that area is known as genital pouch or genital sac. तो आप देख सकते हो जहां पे ओपन होता है there is a sac like, a big sac like structure that is called genital pouch or genital sac. ठीक है. तो जहां पे वजाइना आके ओपन होता है उसको हम बोलते हैं जेनाइटल पाउच और जेनाइटल सैक. Now this genital sac or cavity like structure are present in the 7th sternum. ये जो जेनाइटल और द कैविटी लाइक स्ट्रक्चर है ये कहाँ पे रहता है? ये जो हमने अभी हमने देखा ना, ये जेनाइटल और जो सैक है ये हमने अभी देखा जहाँ पे वो वजाइना ओपन होता है, जिस पोर्शन में, जिस जगह पे, just the genital sac or the genital pouch or the cavity like structure, it is present where? It is present in the 7th sternum. हमने डिस्कस किया था ना, there are different segments of the abdominal part or different parts of the cockroaches. तो ये बेसिकली कहाँ रहता है? रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है फीमेल का, ये रहता है 7th sternum, which forms the boot shaped structure in the female cockroach in the abdomen. हमने पहले ही डिस्कस किया था कि एक मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस भी है कि जो फीमेल होगा उसका जो एब्डोमेन होगा वो थोड़ा बोट शेप का होगा. हमने बात किया था ना, नीचे की तरफ बोट शेप का होगा. तो ये जो बोट शेप का होता है, ये जो 7th वाला पार्ट है स्टर्नम, तो यहाँ पे ये जो कैविटी, ये जो बोट शेप हमें दिख रहा है ना, ये जो एरिया है, ठीक है, ये पूरा ये बोट शेप, ये जो सैक है, यहाँ पे ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअली यहाँ पे होता है. ठीक है. बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ दिस जेनाइटल सैक, और जिसको हम बोल सकते हैं जेनाइटल पाउच, these cockroaches they have this bulge out abdomen at the 7th sternum. ठीक है. थोड़ा सा bulge out जो sternum जो appearance होता है abdomen के 7th sternum में, it is because of the presence of this genital sac in case of female, and that is also a morphological difference and between the male and female. Right. Next, so the opening of the female reproductive tract
known as gonophore. अब जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो वजाइना का ओपनिंग है उसे उसे हम क्या कह सकते हैं, फीमेल के केस में उसे बोलते हैं गोनोफोर. क्या कहते हैं उसे? गोनोफोर. ठीक है. एंड द एग्स आर रिलीज फ्रॉम दिस गोनोफोर. अभी ये जो ओवरीज में जो एग्स बनेंगे वो कहां से रिलीज होंगे? इसी गोनोफोर से रिलीज होते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, वेरी क्लोज टू द गोनोफोर. गोनोफोर के बिल्कुल पास अगर हम ध्यान से देखेंगे, सो वी कैन फाइंड देयर आर मोर पोर इज प्रेजेंट. ठीक है. बिल्कुल गोनोपोर के ऊपर अगर यहाँ पे आप देखोगे मैंने बनाया है, इट इज वेरी स्मॉल इन स्ट्रक्चर, सो लेट अस जस्ट मैग्नीफाई जस्ट फॉर वंस, यू विल अंडरस्टैंड. तो अगर यहाँ पे आप देखोगे ये गोनोफोर है, तो फिर गोनोफोर के बिल्कुल जस्ट ऊपर, मतलब इसी बिल्कुल उसी जगह पे आप देख सकते हैं देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग आल्सो प्रेजेंट. ठीक है. सो इट इज क्लोज टू द गोनोफोर देयर इज अ वन मोर पोर इज प्रेजेंट एंड दिस पोर इज कॉमनली एक्चुअली ऑफ टू ग्लैंड्स. दो ग्लैंड जो यहाँ पे आके ज्वाइन करता है उसको, उनके जो डक्ट्स ज्वाइन करते हैं, एंड दैट इज नोन एज कोलैटरल ग्लैंड. ठीक है. तो दो कोलैटरल ग्लैंड होता है, लेफ्ट साइड में एक होगा, राइट साइड में एक होगा. दो कोलैटरल ग्लैंड होता है. जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो ज्यादा ब्रांच्ड होता है. ठीक है, बहुत ज्यादा ब्रांच होता है. और जो राइट साइड होता है वो कम ब्रांच होता है. ठीक है. सो कोलैटरल ग्लैंड. सो कोलैटरल का स्पेलिंग क्या है? COLLATERIAL, कोलैटरल. ठीक है. COLLATERIAL, कोलैटरल ग्लैंड. ठीक है. तो ये जो स्ट्रक्चर है हम यहाँ पे देख रहे हैं, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर इमीडिएटली और मे बी एट द विसिनिटी ऑफ द सेम एरिया वेयर द गोनोफोर इज आल्सो प्रेजेंट, वहां पे हमें एक और एक ओपनिंग मिलता है जो कि दो अलग अलग ग्लैंड्स है. इसका नाम है कोलैटरल ग्लैंड. दो साइड होता है. लेफ्ट साइड में जो रहता है उसे बोलते हैं लेफ्ट कोलैटरल ग्लैंड, राइट साइड में जो रहता है उसे बोलते हैं राइट कोलैटरल ग्लैंड. मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है, यहाँ पे भी आप बना लेना, लेकिन यहाँ पे जो ब्रांचेस मैंने यहाँ बनाया है लेफ्ट साइड में वो ज्यादा होता है, लेकिन राइट साइड में थोड़ा सा ही होता है. तो ज्यादा लेफ्ट कोलैटरल ग्लैंड जो है वो ज्यादा ब्रांच्ड होता है, राइट कोलैटरल ग्लैंड वो कम ब्रांच्ड होता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग व्हाट वी नीड टू नो एंड डिस्कस, सी नाउ दिस देयर इज वन sac like structure present at the same location and which is known as spermatheca. अब थोड़ा सा फिर से वापस इसको हम थोड़ा मैग्नीफाई करेंगे तो समझने के लिए स्पर्माथिका कहाँ होता है. देखिए जहां पे गोनोफोर है बिल्कुल ही उसके ऊपर आप देख सकते हो कि दो जो कोलेटरल लेफ्ट एंड राइट वाला कोलेटरल ग्लैंड है उनका जो मतलब स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे कॉमन स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आके ओपन करता है, एंड कॉमन स्ट्रक्चर they actually join together and have a common opening of these glands, this collateral gland left and right at the same location where the gonophore is there. बिल्कुल ठीक उसी के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो we can find I have drawn it in red. There is a sac-like structure and in that sac-like structure one is having a little bigger part and another sac part is little bit smaller. So ऐसे इस तरह के स्ट्रक्चर, एक थोड़ा बड़ा होगा दूसरा एक थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब जो सैक वाला स्ट्रक्चर बनाता है इसमें एक पार्ट जो थोड़ा बड़ा होगा दूसरा पार्ट थोड़ा सा छोटा होगा. एंड दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पर्माथिके. इसी को हम क्या बोलते हैं? स्पर्माथिका. ठीक है. दिस इज आवर स्पर्माथिका. नाउ द स्पर्माथिका हैव टू सैक लाइक स्ट्रक्चर, जस्ट नाउ आई डिस्कस, वन स्मॉलर एंड अनदर वन इज बिगर. द स्पर्म्स आर डिपोजिटेड इन द स्पर्माथिका. जो स्पर्म रिलीज होता है तो कहां पे आके स्पर्म जब यहाँ पे मेल से जब कॉकरोच से स्पर्म यहाँ पे रिलीज होता है तो स्पर्माथिका इज द ऑर्गन व्हिच एक्चुअली स्टोर्स द स्पर्म और रिसीव्स द स्पर्म. ठीक है. देन द स्पर्माथिका हैव द स्पर्म्स आर डिपोजिटेड इन द स्पर्माथिका दैट वी नो, एंड देन आफ्टर दैट होता क्या है, एज सून एज द एग इज रिलीज्ड. अब स्पर्माथिका में क्या होगा, स्पर्म स्टोर हो जाएगा, उसके बाद जब एग रिलीज होगा, ठीक है, इमीडिएटली इट विल फर्टिलाइज द एग. तो यहां से जब एग रिलीज होगा तो यहाँ पे ऑलरेडी स्पर्माथिका है, सो इट विल फर्टिलाइज द एग इमीडिएटली. नाउ आफ्टर द एग इज फर्टिलाइज्ड द कोलैटरल ग्लैंड रिलीज सम सब्सटेंस. अब ये रिलीज करे, पिछले बार में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखा था, तो इसमें भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में कि इमीडिएटली मान लो कि अभी यहां से एग रिलीज हो गया और एग यहाँ पे आ गया, रिलीज हो गया, तो ऑटोमेटिकली इसमें स्पर्म है स्पर्माथिका के अंदर, तो एग जो है फर्टिलाइज हो जाएगा. और एग फर्टिलाइज होने के तुरंत बाद इमीडिएटली व्हाट हैपेंस, दिस लेफ्ट एंड राइट कोलैटरल ग्लैंड्स व्हाट दे विल डू, दे विल रिलीज सम सब्सटेंस व्हिच हार्डन्स दिस स्ट्रक्चर.
ठीक है, so that the zygote present in the hard structure known as ootheca. अब ये फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बन जाएगा और वो एक हार्ड स्ट्रक्चर उसको चारों तरफ बना देगा बिकॉज ऑफ द, कौन बना देगा, कोलेटरल ग्लैंड का सिक्रीशन, ठीक है। अब उसी को हम बोलते हैं ऊथिका, वो जो हार्ड स्ट्रक्चर बनेगा जाइगोट का, ठीक है, जस्ट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ द कोलेटरल ग्लैंड इज नोन एज ऊथिके, ठीक है। और ऊथिका उसको क्या बोलते हैं, ऊथिका, ठीक है। नाउ फ्रॉम द ऊथिका द यंग वंस नोन एज निम्स will come out or it will hatch, ठीक है। तो जो young ones हैं वो बेसिकली जो nymphs है वो ऊथिका से बाद में बाहर निकलेंगे मैच्योर होने के बाद, ठीक है। Now next, देखो in female reproductive system there are certain structures are present which are known as the external genitalia. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे मेल में होते हैं, बिल्कुल वैसे ही फीमेल में होते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। लेकिन this external means what happened, this external genitalia they are present inside the genital sac. external genitalia हम तो इसे बोलते हैं और ये है भी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो जो जेनिटल सैक हमने डिस्कस किया उसी के अंदर रहता है, ठीक है। एंड दिस external genitalia these are actually flap like paired structures and we call them as ovipositors. क्या कहते हैं उसे, ovipositors। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि these are paired structure, this is one pair and this is one pair, left side में भी है right side में भी है, these are flap structures and these structures are called ovipositors, ठीक है। Now the ovipositors are the structures which help in the deposition of ootheca. ये जो ovipositors है ये क्या करते हैं, immediately after the sea, अब यहां से एग रिलीज हो गया, स्पर्माथिका में ऑलरेडी स्पर्म्स है तो इसको ये फर्टिलाइज कर देगा, उसके बाद जो कोलेटरल ग्लैंड्स सीक्रेट करेगा सब्सटेंस और ऊथिका को यहाँ पे हार्ड कर देगा, वो उसको हम जाइगोट को हार्ड कर देगा, उसको हम ऊथिका बोलते हैं। एंड देन दीज स्ट्रक्चर्स, दीज ओविपोसिटर्स, इट विल हेल्प द डिपोजिशन ऑफ द ऊथिका हियर, ठीक है। So I will just go back to the slides so that you can just pause and you can write down the points what I have discussed now till now with you. So these are the same points what I have discussed with you. So you can just simply pause and you can take all the points what I have discussed. Okay. So the same thing but I've discussed, the same points are here, so I'm not discussing it again. So you can simply pause it and you can just write down all the points, okay. So here also the same, what is spermatheca. So I have discussed here the spermatheca is a sac-like structure which is having smaller and larger portion or part, and function of the spermatheca is to secrete the sperm, right? And immediately after the spermatheca we have in the vicinity of the spermatheca we have the other structures are also present, okay. And after the deposition of the sperm in the spermatheca का काम क्या है, to deposit the sperm there, and whenever this egg is released it will fertilize the egg, and after that it will the collateral gland also release the substance and it can cause like hardening of the zygote, and that is called ootheca, and it is getting settled in the which the ovipositors will help in the settlement of or the deposition of the ootheca, and later on from the ootheca the young ones of the cockroach, that is the nymph, they will come out, okay. So those things I have discussed, and the ovipositors are what, these are the external genitalia. So those all the points I have discussed, so you can simply pause it and you can write down all the points. So ovipositors क्या है हमने डिस्कस किया था, it's a flap like paired structures, right? And the ovipositors, they are the structures which help in the deposition of ootheca, that also we have discussed, right? Now the next is copulation. अभी copulation में होता क्या है, the male and female cockroaches they copulate from their posterior end. The male cockroach have external genitalia known as phallomers. हमने पहले भी अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, शुरू में डिस्कस किया था कि
जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेल का, उसमें होता है कि दे हैव एक्सटर्नल जेनेटिलिया विच इज प्रेजेंट आउटसाइड ओनली एंड दैट इज कॉल्ड फेलोमर्स. क्या बोलते हैं हम उसे? फेलोमर्स. नाउ दे आर यूज्ड टू सेपरेट द टर्गम और स्टर्नम. तो टर्गम और स्टर्नम को अलग करके करने में यह मदद करता है फेलोमर्स. ठीक है. क्यों इसको अलग करना जरूरी है? बिकॉज inside the tergum and sternum we can means in case of the female the genital chamber or the genital pouch is present where through which the male cockroach can reach up to um, the female genital pore. ठीक है. So that it can transfer the sperm. So they are used to separate the tergum and the phyllomeres are used to separate the tergum and the sternum or the sternum of the last abdomen segment and the of the female, which help to deposit the sperm, right? Now the next thing we need to discuss, that is, the spermatophores are attached, and the spermatophores are what? The structures. अब देखो स्पर्मेटोफोर्स क्या है, हमने अभी तो थोड़ी देर पहले पढ़ा ना कि जो मेल स्पर्म से वो क्लस्टर में रहता है और उसके चारों तरफ 2 लेयर रहते हैं, उसी को हम बोलते हैं स्पर्मेटोफोर्स. तो जो मेल जो बॉडी है उसमें से स्पर्मेटोफोर्स रिलीज होता है एक्चुअली. तो और क्या होगा उसके बाद, ये स्पर्मेटोफोर्स जब फीमेल के बॉडी में एंटर हो जाएगा, सबसे पहले क्या होता है कि बिकॉज द कॉकरोच they have these external genitalia, that is your phyllomeres, and by using the phyllomeres they will actually deposit the sperms in the form of spermatophores, that is in the form of clusters which having 2 layers as well, and then the spermatophores are attached at the opening of spermathecae. अभी स्पर्मेटोफोर्स जो क्या हो गया, जो फीमेल बॉडी के अंदर आ गया, जो जेनिटल सैक में आ गया, फिर वहां से आके क्या होगा, आगे क्या होगा, देन नेक्स्ट इट विल गो एंड ज्वाइन, इट विल द स्पर्मेटोफोर्स इट विल गो एंड ज्वाइन विद द पोर ऑफ द स्पर्माथिका. ठीक है. तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा डायग्राम हमें वापस देखना होगा. सो विल सी द डायग्राम हियर. ध्यान से इसको देखिए और इसको ध्यान से समझना है आपको. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी. So this is the gonophore, this female. This is the female genital pore or gonophore हम इसको बोलते हैं. Immediately after that we have these glands opening, collateral glands opening, and just after that above it we have the spermathecae. तो ये जो spermathecae है ना, इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे, इसको हम अगर मैग्नीफाई करेंगे, मान लीजिए अगर ये spermathecae है, तो यहाँ पे spermathecae का ओपनिंग है ऐसा. ठीक है. सो देयर इज ओपनिंग एट द एंड ऑफ द स्पर्माथिके. और क्या होता है, ये स्पर्माथिके का जो ओपनिंग है, यहाँ आके जो आपका स्पर्मेटोफोर है, दैट इज एक्चुअली कमिंग एंड इट विल जॉइन हियर. ठीक है. ऐसे करके यहाँ पे ज्वाइन कर लेगा. और इसमें हमने पहले से पता है हमें कि इसमें 2 लेयर होते हैं, क्लस्टर फॉर्म में रहता है. सो इट विल कम एंड जॉइन दिस पार्ट ऑफ द ओपनिंग ऑफ द स्पर्माथिके. ठीक है. सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप. Now what happened next after it joined with the after it joins like the spermathecae attached with the opening of the spermathecae, then the secretion of phallic gland hardens the spermatophores. अब इसके बाद क्या होगा कि जो secretion है phallic gland का, ठीक है, phallic gland PHALLIC है, phallic gland का जो secretion है वो क्या करेगा, now it will hardens the spermatophores. ठीक है, by formation of the outermost layer surrounding the spermatophore. देखो नॉर्मली स्पर्मेटोफोर में 1-2 लेयर होता है ना, लेकिन because of the action of the phallic gland immediately when it attaches with the opening at the opening of the spermathecae, it will form another extra layer or the outermost layer immediately. ठीक है. This hardens the structure of spermatophores और ये स्ट्रक्चर को पूरा हार्डन कर देता है. ठीक है. नेक्स्ट, now what happens, now these
the sperms, it will actually slowly the sperms are transfer from the spermatophores to the spermatheca. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे here is the diagram. So spermatophore आके spermatheca के opening में join हो गया. तो आप थोड़ा इसको बड़ा बनाना, don't completely show that one spermatheca is joining only with these at the opening of this spermatheca. Sorry, one spermatophore is not joining at the opening of this spermatheca. तो आप इसको spermatheca को थोड़ा बड़ा बनाना और यहाँ पे आप एक साइड में थोड़ा सा दिखाना, ठीक है. So don't draw it this in this way. So just let me try to show you what I am saying. कि मान लो कि आपने यहाँ पे spermatheca बनाया, तो यहाँ पे इसका ओपनिंग होगा. तो आप जब ये बनाएं, जब आप spermatheca बनाना spermatophore बनाओ, तो you should draw in this way, side way, ठीक है. तो इस तरह के और भी दूसरे spermatophore जो है वो भी यहाँ ज्वाइन करते हैं, सिर्फ एक नहीं. तो ऐसा मत समझना यहाँ पे मैंने समझाने के लिए डायग्राम बनाया है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही spermatophore जो है ज्वाइन करता है, ऐसा नहीं है. देयर आर अदर spermatophores which also joins, ठीक है ना. Now after that what will happen after you get the third layer is formed because of the phallic gland substance secretion of the phallic glands. It will become hardened. थर्ड लेयर बन जाएगा चारों तरफ. तो आप देख सकते हो secretion of the phallic glands which make it more hardened. Now this is the spermatophore and this is the spermatotheca. Now the sperms are present in the form of cluster inside it. We know that structures are present inside it. Then it will transfer inside the spermatheca and they will store here. यहाँ पे store हो जाएगा, ठीक है ना. Now as soon as हमने अभी देखा कि as soon as, ठीक है. अच्छा, एक चीज क्या है कि जब ये स्पर्माथिका से स्पर्माटोफोर से सारा स्पर्म अंदर स्पर्माथिका में चला जाएगा, फिर क्या होगा, ये स्पर्माटोफोर ऑटोमेटिकली डिटैच हो जाएगा, इट विल फॉल ऑफ, ठीक है, निकल जाएगा, ये स्पर्माथिका से अलग हो जाएगा. नाउ नेक्स्ट, अभी स्पर्म स्पर्माथिका में है, हमें इसके बाद पता क्या होता है. इसके बाद हमें पता है कि जब एग रिलीज होगा तो फिर क्या होगा. Automatically the egg when the egg will release and the spermatheca is already have the sperm, so it will fertilize the egg immediately, right. तो एग को क्या करेगा, ये फर्टिलाइज कर देगा, है ना, जाइगोट बना देगा. और हमें उसके बाद क्या पता है कि जाइगोट जो है इट विल एक्चुअली बिकम हार्डन, ठीक है. जो जाइगोट जो है वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है. और एंड दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, दैट इज बिकॉज ऑफ द सिक्रेशन ऑफ these left and right collateral gland and it will form hard structure that is called ootheca, ठीक है. So that ootheca, the same thing it is mentioned here. After the fertilization, the secretion of the collateral gland will hardens the structure and that is called ootheca. And there are total 8 eggs which are laid in a chain and they are fertilized. After the fertilization, they enter the structure. The entire structure is covered with the secretion of collateral gland. तो यहाँ पे डायग्राम अगर देखोगे तो जो एग्स होते हैं ना, बेसिकली 8 होते हैं और एक एक चेन में 8 एग होता है. वैसे 2 चेन होता है एक स्ट्रक्चर में, तो मतलब टोटल 16 एग्स होता है. सो लेटर जस्ट नाउ यू विल अंडरस्टैंड व्हेन आई विल शो यू द डायग्राम, तो यहाँ पता चलेगा आपको. सो जो एंटायर स्ट्रक्चर है, मतलब जो एग से वो फर्टिलाइज हो जाएगा, देन स्ट्रक्चर इज कवर्ड विद द secretion of the collateral gland and then the structure is known as ootheca. तो ootheca क्या है यहाँ पे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा. क्योंकि एक चेन में ऐसे जो एक डेवलप होता है ना आपके ओवरीज में, तो उसमें एक एक चेन जो होता है वो 8 एग से बनता है. ऐसे 2 चेन होते हैं तो टोटल 16 एग्स होता है. एंड ऑल विल कम लाइक दिस टुगेदर एंड ऑल विल बी फर्टिलाइज्ड, ठीक है. तो ऑल क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, these are the chain. You can count. You should also make it 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do not draw more than 8. So and then after fertilization, what will happen? Because of the secretion of the collateral gland. So what will happen? They will form a hard structure, and this hard structure is called ootheca. ठीक है. And धीरे धीरे ये hard structure का जो shape है वो बदल जाएगा और ऐसा concave टाइप का हो जाएगा. Later on, this will break and this structure will break from here, this concave side, and the nymphs, the young cockroaches, nymphs are nothing, they are young cockroaches, they will come out from that area, ठीक है. So वही बात है जो मैंने यहाँ बताया कि the shape of the ootheca changes or the shape by the ovipositus. जो अभी क्या होगा, अभी ootheca कहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट पार्ट
जो जेनाइटल ट्रैक में जो होता है, सॉरी जेनाइटल जो सैक है, फीमेल जेनाइटल सैक, ठीक है, जिसको हम जेनाइटल पाउच भी कहते हैं, जेनाइटल चेम्बर है, वहां पे हमने देखा था कि पेयर्ड स्ट्रक्चर्स रहते हैं ऑलरेडी, जिसको हम बोलते हैं ओविपोजिटर्स. They will actually, these ovipositors will actually help to change the ootheca shape into this concave type of shape slowly. And it has a concave side. Concave side होगा where the ootheca will rupture. यहीं से rupture हो जाएगा और जो nymph है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा. ठीक है. So now the nymphs are what, मैंने आपको भी बताया कि nymphs जो है these are nothing but these are young cockroaches. ये कुछ नहीं है, बस these are young cockroaches. और ये जो यंग कॉकरोचेस होगा ना, ये इनके बॉडी में बहुत सारी चीजें रहती हैं, सब बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है इनका, तो हम बात कर लेंगे उसके बारे में. जैसे कि इनमें विंग्स नहीं होता है, बॉडी इनका ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उनमें डेवलप नहीं होता है, ठीक है. अब जो निम्फ होगा ना, इनमें भी काफी देयर आर मेनी टाइम्स दे विल, नाउ व्हाट हैपेंस, देयर विल बी मेटामॉर्फोसिस. मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या होगा, उसमें 7 से 6 बार मोल्टिंग होगा. और मोल्टिंग के हमने पहले भी डिस्कस किया है. मोल्टिंग मतलब द कॉकरोच विल they will get rid of the old outermost exoskeleton. They will release, they will you know scrap that external exoskeleton, and they will create a new one. They will generate a new one, synthesize a new one. उसको बोलते हैं मोल्टिंग. तो वैसे 6 से 7 टाइम्स मोल्टिंग होगा, and after the 6 to 7 times molting the nymph will changes into adult cockroach. 6 से 7 बार मोल्टिंग होने के बाद जो कॉकरोच है वो डेवलप हो जाएगा, एडल्ट बन जाएगा, जिसमें कि विंग्स आ जाएंगे, बाद में फिर वो ट्रांसपेरेंट बॉडी नहीं रहेगा, प्रॉपर जो एक्सोस्केलेटन है वो बन जाएगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो भी डेवलप हो जाएंगे, ठीक है ना. So this is called metamorphosis, and this type of metamorphosis we call it here, this is called direct metamorphosis. अब बोलोगे आप सर डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस क्यों कह रहे हो? सर देखो, डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस का कारण क्या है. देखो, हमने पढ़ा था, आपको इतना आइडिया है कि मेटामॉर्फोसिस में कभी कभी क्या होता है, इंटरमीडिएटरी स्टेजेस भी होते हैं. जैसे कि हमने टैडपोल में देखा, सॉरी फ्रॉग के केस में क्या होता है, टैडपोल होता है, वो एक लार्वल फॉर्म है. उसके बाद लार्वल फॉर्म जो टैडपोल है वो मेटामॉर्फोसिस होने के बाद एडल्ट फ्रॉग बनता है. लेकिन कॉकरोचेस में क्या हुआ, शुरू से ही देखो छोटे निम्फ जो है ना, दिस आर यंग कॉकरोचेस, दे आर नथिंग, दे आर नॉट लार्वे. अभी यंग कॉकरोचेस में कुछ जो पार्ट होते हैं बॉडी के वो एब्सेंट होते हैं या फिर नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे डेवलप हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस. इसीलिए इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेटामॉर्फोसिस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द structure. This is all about the reproductive system in case of female. Now I will discuss the proper diagram of the female cockroach reproductive female reproductive system in case of cockroaches. So here you can see the diagram properly, so it is visible very clearly here. So these are the two ovaries which are having these 8 tubules. ठीक है, तो आप देख सकते हो, these are the 8 tubules. ऊपर जो इसका टैपरिंग एंड्स होता है नैरो होता है, नीचे जो बेस थोड़ा ब्रॉड होता है, and all they have connected together and they form the oviduct. दोनों ओविडक्ट जुड़ के एक और ज्यादा वाइडर सेक्शन डक्ट बनाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन ओविडक्ट और वेजाइना. ठीक है, देन वी कैन सी देयर इज ओपनिंग ऑफ द ओविडक्ट, एंड जहां पे ओपन होता है वहां पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है. बिकॉज ऑफ द सैक लाइक स्ट्रक्चर द एब्डोमेन पार्ट ऑफ द कॉकरोच इज एक्चुअली हैविंग अ बोट शेप. ठीक है, 7th जो स्टर्नम होता है वहां पे. देन वी कैन सी इमीडिएटली इन द विसिनिटी ऑफ द फीमेल जेनाइटल or the female genital pore or gonopore. वहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, immediately after that we are having one more pore where it is actually coming from the and forming, it actually formed by the 2 glands. What glands? Left collateral gland and the right. The left आप देख सकते हो, मैंने बताया था इसका ब्रांचिंग ज्यादा होता है, राइट वाला कम होता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, या आपको याद रखना पड़ेगा. Then you can find a structure that is a sac-like structure which is having one small part and another big part, and they also have a common opening, and this structure is called spermatheca. इसको हम क्या कहते हैं, इसका काम क्या है, sperm को secrete करना है ना. Then we can see there here inside the genital chamber or the sac there are these pear-like structure, flap-like structures are present. These are called ovipositors. इनका काम होता है to shape the ootheca. ठीक है, इसको हमने देखा कि ootheca को shape करता है, concave structure बना देता है, धीरे धीरे
शुरू में जो स्ट्रक्चर होता है वो तो क्या होता है कि बेसिकली मेनी एग्स 8 एग्स 2 चेन्स ऑफ द 8 एग्स उसको फर्टिलाइज करता है, फिर ऊथी का बन जाता है, सॉरी हाँ ऊथी का बनता है, देन फाइनली slowly it will mature and it will changes its shape, and we have discussed that. Then the nymphs are coming out from it, right? So by this we have finished the cockroaches. So in the next class we'll start the next chapter. Thank you.